this is where you are going to go. Okay, so now what you need to do is you need to go into apply now. Okay, and once you go into this UPSC website, at that time if you click for this, right? So this, say for example, to, so here you are only going to get the notification. That is what we have to understand, right? Here you are only going to get the notification. What I'm doing is, for all of you, you can say ask me, unmute and ask me questions whenever you have got any kind of questions. Okay, Anjali, your mic is on. ओके, सो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. सो नोटिफिकेशन, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको ये नोटिफिकेशन खुलेगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होना चाहिए, राइट? सो what is the eligibility they are talking about, how to apply, last date. So last date is 24th of March till 6 p.m, right? You have to understand this. बहुत लोग लास्ट डे पे उनको लगता है 8 बजे फॉर्म भरेंगे, बट 6 p.m इट गेट्स, एंड 5 p.m से ही सर्वर यू कैन से हैंग होना चालू हो जाता है. सो ऐसा करना मत. ओके, सो दैट इज, दैट शुड नॉट बी देयर. मोबाइल्स आर बैंड. ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, कौन से सर्विसेज है, तो हमको ये भी पता होने चाहिए. अभी आपको सर्विसेज नहीं भी पता है तो भी चलेगा, आप सिर्फ एग्जाम दे दो, राइट? क्योंकि ये सब जो आपको है, दैट यू हैव टू फिल ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, कि आपको कौन सा सर्विस का प्रायोरिटी क्या है. दिस ऑल यू हैव टू फिल ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. ओके, एंड डोंट गो इनटू द डिटेल्स हाउ मेनी यू कैन से दिस आर देयर, हाउ मेनी पोस्ट आर देयर, कौन से पोस्ट के लिए कौन सा क्या है, इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि ये सब चीजें आपको काम में नहीं आने वाली एग्जाम में. Okay, don't have discussions over this. Instead, you have discussions over your syllabus and how to cover your syllabus and how much is your marks and how you want to increase the marks in your test series, right? So ये सारा आपका notification है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है. Now preliminary exam कहाँ कहाँ पे है? So you should be knowing, if you are studying with us and most of you are going to give the exam in, you can say, Pune. So Pune is a center for preliminary exam, as you can see here, right? But you can choose the center which is the closest center, right? तो इसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि कैसे आप ये select करोगे. Okay, say for example Bell is there, she would be giving Shillong, right? And other say Vishnu Priya is there, she must be giving Jaipur, or which is nearby her, right? So this preliminary center you can select, right? And main center बहुत कम है, तो means के लिए आपके centers बहुत ही कम है. And here also I'll give you a strategy that how you need to the you can say go about this. And as it is always first apply first allot basis पे ये होता है, right? Okay, so the commission reserves the right to change the centers at discretion if the situation arises. But you have to remember one thing, जब आप अभी ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको means का भी सेंटर भरना है. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, राइट? सो प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन दिया हुआ है जो हम सबको पता है, प्रीलिम्स है, मेंस है, राइट? ओके, सो दैट इज देयर. So applications are now invited only for the preliminary exam. Candidates are declared by the qualified to admission. The mains will have to apply again and submit online detailed application form 2, right? तो वो तब ही आपको देना होगा with scanned documents in support to date of birth, या फिर आपका SC ST जो भी आप क्लेम कर रहे हो, आपका कास्ट है, EWS, तो वो तब आपको डिटेल में आपके सारे देने पड़ेंगे. ओके, नॉट एट दिस यू कैन से मूवमेंट. Any delay in DAF1 or documents in support beyond the proposed date will not be allowed to lead to cancellation of the candidate, right? So all these things are very very important. Eligibility criteria: age limit, you should have completed 21, right? And have attained the age of, not have attained the age of 22. And what is the cutoff date? Again 1st of August this. तो अभी इन्होंने डायरेक्टली आपको बता ही दिया है कि यू कैन से कौन दे सकता है ये एग्जाम. नॉट earlier, not who was born earlier than 1989 and not later than 1st August 2000. So very clearly they have talked about the age limitations, right? Upper जो age limitations है 5 years if the candidate is of scheduled caste, scheduled tribes, 3 years if it belongs to the OBC, maximum 3 years to defense. ये सब का चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, right? So this all we must have gone through very very properly. Minimum educational qualification, we already know that, right? Number of attempts, SC ST is only the age limit, right? Unlimited are there. OBC 9 attempts होते हैं, right? Okay, so these are there. और बाकी के लोगों को कितना है, जनरल लोगों को? So जनरल लोगों के लिए आपके 6 attempts है, right? So that is there. This is you can say physically handicap जो लोग होंगे उनके लिए है ये. Restrictions on applying, okay, medical standards, fees,
Okay, how to apply, very all these things are basic things. Last date we have already seen. Correspondence भी एक बार आप देख लो, right? If you have got any issues, so you have got information in this regard can be obtained in the facilitation counter. So अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है हमारे हॉल टिकट ये वो, थोड़े ये जो नंबर्स है हमको पता होने चाहिए और उनको तुरंत ईमेल करना होता है हमको, right? So that basic things we should be able to know. Okay, so बस इतना ही है ये नोटिफिकेशन में. And notification would then give you can say the syllabus, right? So syllabus देगा आपको notification, कौन से optionals है ये बताएगा notification आपको. Which all of the things, I think most of the things we know, right? So this is the preliminary examination syllabus, nothing has changed here, right? Means examination का जो syllabus है वो. Okay, everybody, everything is clear about the notification? Yes, any doubts about the notification up till now? Anybody has got any doubts? Okay, fair enough. Now we go to the main part. Okay, let us go to the main part. Okay, now when we go to the main part, we just have to go here, apply, right? तो ये अलग है, upsc.gov apply online में जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस में जाना है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, राइट? सो दिस इज पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन. दिस इज फॉर बोथ कॉमन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. ओके, so this is a common form. You just click first on this part. Okay, these are all the instructions which have been given. Okay, these are all the instructions which have been given. एक बार चाहिए तो आप रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये मैं आपको आज दिखा नहीं पाऊंगा, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. स्कैन फोटोग्राफ जो है ना, अभी आपको क्या करना है, आपका फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में वो रेडी रखना. कैसे रेडी रखोगे आप? द डिजिटल साइज शुड नॉट एक्सीड 300 केबी, राइट? एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 220 केबी. रेजोल्यूशन जो है पिक्सल्स में दिया हुआ है, इतना रेजोल्यूशन होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये जो है ना आपका, तो ये आपका रेडी रखना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस यू हैव टू कीप your thing ready. So scanned photograph it is talking about, and signature it is talking about. So these two things you have to keep ready in whatever the dimensions they have kept. So before you start filling your form, ये दोनों चीज आपका रेडी होना चाहिए, and in the dimensions of the form. Everybody knows how to, you can say, keep this ready, right? Yes, आप लोगों को पता है कैसे इसको एडिट करना है. Everybody, you go into the paint or you go into not paint but जो Microsoft editor होता है उसमें जाके आप ये एडिट कर सकते हो. Everybody knows how to edit this? Yes or no? Yeah. So just keep this ready for the first timers. Okay, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, आप सब कर दोगे और उधर आप अटक सकते हो. So ये वाला चीज आप सिर्फ रेडी रख देना, right? Okay. And I hope that most of you are going to pay online only. So cash वाला हमको you can say नहीं आता है, right? देखो ये important है, that is why they have highlighted this. Candidates should note that no change in the specific details of the center of examination. तो center of examination prelims और means का अब भी ही select करना पड़ेगा. इंटरव्यू का आपको चॉइस दिया नहीं है सिलेक्ट करने के लिए, बिकॉज इंटरव्यू एवरीबडी हैज टू गिव इन द ढोलपुर हाउस दिल्ली, राइट? ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब चीजें जो है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज अब भी ही फिक्स करना है आपको, एंड देन यू कैन नॉट चेंज दैट. दैट इज व्हाई यू आर, यू कैन से, एडवाइज वेरी केयरफुली while filling this details. तो क्या क्या अब भी फिक्स करना है आपको? आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा देने वाले हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप कौन सा रहने वाला है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज कौन सा देने वाले हो, ये सारा अब भी से ही आपको फिक्स करना है. ओके, सो इफ यू हैव रेड इट you can just say okay, I have read it. Okay, then you can say type in your name, select the gender. Okay, then you can say just go about this. अभी यहाँ पे अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो ही आगे के कॉलम्स खुलेंगे. सो लेट अस assume that 89 है तो 90. फादर्स नेम यू हैव टू, ऑल द कॉलम्स आर कंपलसरी. और याद रखना जब भी आप नाम लिख रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जो 10th और 12th के एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट पे जैसा नाम है वैसे ही यहाँ पे लिखना. अगर कैप्स लॉक में है, ओके, कंप्लीट कैपिटल में है तो कंप्लीट कैपिटल में, जस्ट रेप्लिकेट दैट. ओके, इज इट क्लियर? सो ये सब चीजें एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए.
Again, you can say father's name, just write down. You can say do not use any prefix, right? Shri, doctor, ये सब लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. Okay, you just write down however it is written in the official document. तो document लेके बैठो और वहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है. Okay, sir, they said that if name goes beyond 30 characters, then you can say send fax to the office. Okay, this is, you can say something, is it necessary? ओके, ये तो मेरे महीने भरते हो, मुझे लग रहा था मेरा नाम और सरनेम बहुत बड़ा है, बट आई डोंट थिंक दैट यू कैन से इट इज द केस. आप यू कैन से ट्राई करो एक बार भरने को जो फॉर्म 1 है. ओके, एंड इफ इट इज नॉट गेटिंग फिक्स्ड, if it is not getting fixed, then you can say you can contact them, योगेश्वरी. ओके, तो फिर आप फोन कर दो. पर मुझे नहीं लग रहा है कि 30 कैरेक्टर्स के ऊपर मतलब ये होगा. ओके, यू जस्ट चेक इट वंस while filling, because I have never faced that situation, so I'll not be able to comment on that, but you try to fill in. ओके, वैसे भी आप सबमिट तो यहाँ पे करोगे कंटिन्यू, देन ओनली वो सबमिट होगा. अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो सबमिट ही नहीं हो पाएगा वो प्रॉपरली. ओके, नाउ सिलेक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसेबिलिटी है, अगर आप यस लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके और ड्रॉप बॉक्स खुल जाएंगे. सो विच इज द डिसेबिलिटी, देन यू विल हैव टू मार्क इफ यू हैव गॉट एनी डिसेबिलिटी, राइट. देन ऐसा है, अगर नो है, एनी डिसेबिलिटी, यू आर नॉट फिजिकली हैंडीकैप, जस्ट गो फॉर नो, नथिंग ओपन्स. देन कम्युनिटी, इफ यू आर, यू कैन से जनरल कम्युनिटी, जस्ट राइट जनरल. अगर ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ऑलरेडी, राइट. सो ये सब पूछेगा, देखो आपको सर्टिफिकेट, अथॉरिटी कौन सा है, अथॉरिटी, राइट, एंड डेट, ये सब चीजें आपको पूछेंगे. एंड द नोटिफिकेशन इज वुड ऑलरेडी हैव मेंशन कि कौन से डेट तक का ये चलने वाला है. तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी रेडी चाहिए. ओबीसी, देन यू हैव टू सिलेक्ट वेदर यू आर अ क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, राइट. सो अगर आप नो लिखते हो फिर आगे आपको लिखना पड़ेगा. अगर आप क्रीमी लेयर हो तो ऑटोमेटिकली कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट. सो यू हैव टू जस्ट, you can say, be ready with all what they are going to ask. SC, again the same thing, community certificate number they are going to ask, community certificate issuing authority, date, and you can say this basic things they are going to ask. But if you are a general, just you can say mark this. Then this talks about religion, minority religion है या नहीं है. So if it is yes, you write down which is the religion, directly drop box से आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है. और अगर नो है तो नो. ओके, तो अभी देखो, मैं अगर SC लिखता तो ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पे आ जाता था कि मेरा जो फीस है, आई एम एग्जेम्प्ट, राइट. सो किसके इसके लिए एग्जेम्प्ट है? SC, ST, PH, फीमेल कैंडिडेट्स. सो फॉर देम इट इज एग्जेम्प्टेड, राइट. सो ऐसे आ गया. देन यू विल हैव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. नाउ दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इफ यू हैव ऑलरेडी पास्ड द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अगर आपके पास आ गया है रिजल्ट, ऐसा मत बोलना कि मैंने मेरा फाइनल एग्जाम दे दिया है और मैं पास हो जाऊंगा. व्हाट हैपेंस इज देन, if you can say by mistake also you don't clear, then it can create problems, right. So ये मत करना. Somebody has got a question. Okay, sir, EWS 1 year के लिए valid है? Yes, EWS is valid for, you can say, 1 year. Every year it has to be renewed, because it is commonsensical, because it is economically weaker section. So each year they are going to see what is your economical situation, right. So that is there. Okay, और years भी देख लो आप. EWS वाले जो है, फॉर एग्जांपल one of my students, okay, he produced EWS, he is just now he is written mains. अभी इंटरव्यू का भी उसको कॉल आएगा, बट जब मेंस का फॉर्म भर रहा था उसको समझा कि EWS आपका, यू कैन से, लास्ट 3 साल का पूछेंगे, वेदर यू आर बीन, यू कैन से, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आपको 3 साल का देखेंगे आपका लास्ट, राइट. और मतलब एक भी उसमें साल में अगर ये गड़बड़ होता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम इट. तो ये सारे जो, अगर जो भी आप एग्जाम्शंस क्लेम कर रहे हो तो उसके रूल्स आपको पढ़ना, या फिर उसके बारे में आप पूछना. you contact me. What I can do to you is, जो I have people, right, so those who have filled in SC category, OBC category, EWS category, okay, so they might be knowing better in that. So if you have any doubts, we can, you can say directly, if I can resolve, I'll resolve it, or I can get you to the people who have, you can say, filled in this. तो अभी एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का, स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है. ओके, से आई हैव ऑलरेडी पास्ड, देन स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू चूज एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ऑल दिस थिंग्स, राइट, ये सब अगर आप चूज करते हो, से इंजीनियरिंग, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रेफरेंस खुल जाता है 2. ओके, सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए दे रहे हो या दोनों के लिए दे रहे हो? ओके, सो ऐसे हो जाता है. इफ
say for example it is non-science, say I have done it in history, political science, so automatically only one option would come, only one option would come. You have to understand that if you are attempting for the forest service, और आपका फॉरेस्ट सर्विस का जो ये होता है कट ऑफ, दैट इज यूजुअली ग्रेटर देन द सिविल सर्विस, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस में कॉमन सेंसिकल है, पोस्ट कम है तो उसका कट ऑफ और ऊपर जाएगा। से अगर सिविल सर्विस का कट ऑफ 100 आता है तो यू कैन सी इसका कट ऑफ 110 आ सकता है, राइट। बट अगर आपने अभी दोनों चूज कर दिया और अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका 110 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, आई एम जस्ट टेलिंग, मतलब जो भी कट ऑफ है उसके 10 मार्क ऊपर जाएगा, देन इट इज बेटर दैट आप फॉरेस्ट सर्विस मत चूज करो अभी, राइट। ओके, बट इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आपको लग रहा है कि बाबा नहीं आपका कट ऑफ यू कैन से ऊपर जाएगा और आपको कैसा है कि मेंस देना है सिविल सर्विसेज का, एंड आफ्टर यू गिव द मेंस you get some time, then you will prepare for the forest service and you also want to give the forest attempt, then only you choose। मतलब है इसके लिए देना है ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों का कि उनके 6 अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे सिविल सर्विसेज के, राइट, दोज हु आर जनरल कैटेगरी, एंड देन दे वुड वांट टू प्रिपेयर एक्सक्लूसिवली फॉर द फॉरेस्ट, बट अभी आपने अटेम्प्ट सारे खत्म आपके एग्जॉस्ट कर दिए तो नहीं मजा आएगा आपको तभी। आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आर यू ऑल विथ मी? यस। कॉमर्स का ऑप्शन होगा, क्यों नहीं है, कॉमर्स का भी ऑप्शन होगा तेजल। सो इफ यू जस्ट गो इनटू दिस 100% देयर वुड बी commerce, there is management, I have seen management, so there has to be commerce also, and if it is not there you just write down others करोगे, okay, so automatically आपको civil services ही आ जाएगा, but there would be you can say commerce also, if it is not there you just go with the other, okay, it has to be there. It is not there, okay, so you can just go with others, you can just go with others, not a problem. Okay, okay, so समझो हमने ये सिलेक्ट कर दिया, सिविल सर्विसेज हमको देना है, ओके, आपका एड्रेस आप प्रॉपरली ये कर लो, लिख लो, राइट। से एड्रेस also I have filled in, let us just fill in the address, okay, let me just go for general here so I don't have to fill in the other things. No, I filled in everything, okay. Address, say I belong to Maharashtra, district is Pune, pin code, so this is my pin code, I go with my mobile number, but this is already registered so it might not work. This is my email ID, right? I don't think that this email ID would work, but still. ठीक है, so this you have filled in everything, just go through, once you have filled in वापस एक बार फॉर्म पूरा देख लेना है, पूरा सब कुछ चेक कर लेना है, स्पेलिंग्स चेक कर लेना है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, sometimes if we are writing in the caps lock, right, we are not used to seeing the things in the caps lock, so we tend to make mistakes, and I have seen many forms where basic mistakes have been made. I'll not even you can say reveal the errors, but ये करते हैं, तो एक बार पूरा चेक कर लो, और अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, क्या करना है, इधर से कॉपी करना है, just go into the word, okay, वर्ड में जाना है आपको, ओके, ऐसे समझो आप वर्ड में चले गए, तो आपको क्या करना है, से ऑल आर कैपिटल, ओके, सो यू व्हाट यू शुड डू यूजुअली इज यहाँ पे पेस्ट कर लो इसको, ओके, और यहाँ से उसको सेंटेंस केस कर लो उसको, राइट, एंड जस्ट सी वेदर द स्पेलिंग्स आर ओके और नॉट, राइट, सो वी आर मोर यूज्ड टू सीइंग लाइक दिस, राइट, सो इफ द स्पेलिंग्स आर ओके ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा, क्योंकि ये आपके साथ परमानेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है आपका, ओके, सो let us you can say go ahead. So now are you claiming age relaxation? So I would say no, I am not claiming the age relaxation. तो यहाँ पे देखो क्या होगा, this photo ऐसे ऐसे चल रहा है, राइट, तो अभी आगे का इंपॉर्टेंट है हमारे, देखो यहाँ पे आगे आपका क्या आ गया है,
आप फोटो आइडेंटिटी कौन सा रखने वाले हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई यूजुअली यूज टू कीप द ड्राइविंग लाइसेंस, राइट, बिकॉज वो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, मेरे वॉलेट में हमेशा रहता है. मैं मुझे ये जो आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो मुझे अलग से कैरी करना पड़ता है. ओके, सो आई यूज टू ऑलवेज कीप द ड्राइविंग लाइसेंस, राइट. ओके, और उसका एक डुप्लीकेट भी है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं अगर घूम गया तो भी, राइट. सो आई यूज टू, दैट इज व्हाई स्ट्रेटेजिकली आई हैव टू कीप ड्राइविंग लाइसेंस. फिर उसका नंबर यहाँ पे लिख दो. ओके, एंड देन कितने परसेंटेज आपको ग्रेजुएशन में मिले हुए हैं, से आई जस्ट कीप द नंबर्स हियर. ओके, सो okay, then say I got 76%, so I'll just write it here. अटेम्प्ट्स कितने दिए हुए हैं, सो ये इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. वो सिर्फ क्या पूछ रहा है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कितने अटेम्प्ट्स है. फॉरेस्ट के लिए आपको, अगर मैंने पीछे किया होता फॉरेस्ट, तो दे माइट हैव आस्क्ड मी, राइट. सो यू कैन से इफ आई हैव गिवन वन, गिव वन ऑलरेडी. प्रीलिम्स पकड़ने, प्रीलिम्स के अटेम्प्ट, अगर प्रीलिम्स का आपने सिर्फ फॉर्म भरा है तो अटेम्प्ट नहीं पकड़ा जाता है अभी तक. अगर आप वहां पे जा रहे हो, एग्जाम एक भी दिया हुआ है तो आपका अटेम्प्ट होगा. सो if I have said I have given 4 attempts, just write 4. 0, you just write 0. Now this is the most important thing currently for you. Okay, Center for Civil Services Examination कौन सा लेने वाले हो, तो देखो पहले पहले क्या पूछा है उन्होंने, मेंस एग्जामिनेशन के लिए पूछा है. याद रखो, ये चीज समझ के लो आप. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट दे हैव आस्क्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. गड़बड़ करते हैं बच्चे. सॉरी, योर माइक इज ऑन. तो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये पढ़ते नहीं है कि सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए पूछा हुआ है. ओके, दे फील दैट दिस इज ऑल हैपनिंग फॉर द प्रीलिम्स एंड दिस सेंटर दे जस्ट गिव इट फॉर द प्रीलिम्स, बट नो, दिस इज फॉर द मेंस. Okay, now all the students who are from Maharashtra, okay, if you are from Mumbai, then give, you can say Mumbai as the center. If you are from, you can say, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि महाराष्ट्र में जो है, so you have got only one center, that is Mumbai. Another कोई भी center नहीं है. Actually Pune should have been the center because most of the students are preparing from Pune itself, but वो center नहीं है unfortunately. So if you are from Mumbai in Maharashtra, then only give Mumbai. Otherwise you can think about Ahmedabad, to be very honest, because what happens with Mumbai is this year also the centers are distributed. अगर बहुत सारे numbers आ गए तो एक center होगा फोर्ट एरिया में, that is you can say साउथ मुंबई में. दूसरा center होगा किधर, तो मिडिल में होगा, पार्ले में होगा, या फिर सायन में होगा. ओके, तो ये गड़बड़ हो सकता है. जो आपका ट्रांसपोर्ट है, ये इसका कम्युनिकेशन, इसका प्रॉब्लम हो सकता है, रहने का प्रॉब्लम हो सकता है. सम पीपल माइट नॉट लाइक द क्लाइमेट, राइट, of Mumbai, which is humid. Okay, so the safe center which I call is Ahmedabad. Why it is safe center? Because एक ही सेंटर होता है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं होते हैं, तो एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर में आपका नंबर आता है. वहां पे रहने का cost of living is relatively, you can say, cheaper. The cost of food is relatively cheaper. And from Pune there is a overnight train. दुरंतो में आप जा सकते हो, 10 बजे यहाँ से निकलती है, सुबह 7-8 बजे वहां पे पहुंच जाओगे, and it would be, you can say, all set. It would be all set. Plus a lot of students from, you can say, HVD CEC would be again appearing for mains. Last year वाले जो है, तो वो अहमदाबाद लेंगे ही. So you will also have proper, you can say, things in place कि कहाँ पे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, right? अगर आप बाहर के कोई स्टूडेंट हो, तो say for example, if I was well, I would have given Shillong, right? Very good center it is, Shillong. तो आपको सबसे जो पास में सेंटर है, ओके, जहां पे आप रह सकते हो, क्योंकि मेंस आप समझो दोस्तों अभी डिफिकल्ट हो गया है देना, क्योंकि आप वहां पे फ्राइडे सैटरडे संडे आपको पेपर है. You are at least going to reach on Wednesday or Thursday there, right? So you'll go and reach Wednesday on Thursday. You will settle yourself there, right? Okay, then you will give the paper on Friday, Saturday, Sunday. Most of the students then they don't come back. They have to stay there from Monday to again Friday, Saturday, Sunday. Next weekend में Saturday, Sunday में वापस टेस्ट होता है. So Friday first weekend में, Friday में आपका ऐसे पेपर है. Then Saturday, Sunday, Saturday में आपका GS1, GS2 है. संडे में आपका GS3, GS4 है. देन मंडे टू फ्राइडे इज द गैप. ओके, जहां पे आप, यू कैन से, आप वहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टे इन दैट सेंटर. ओके, सो इट शुड बी, अफोर्डेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, राइट. एंड देन सैटरडे यू हैव टू गिव द लैंग्वेज पेपर्स, दैट इज मराठी और हिंदी और whatever is your regional language. Okay, and you can say Sunday you have to give, संडे आपको क्या देना पड़ेगा, तो संडे आपको देना पड़ेगा आपका ऑप्शनल पेपर. तो ये बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही, यू कैन से, शांति से ये सिलेक्ट करना. ओके, इसमें गड़बड़ करना मत. ओके, सो इफ से फॉर एग्जांपल आई गो फॉर अहमदाबाद, ओके, देन you can say, see again, please read this very properly. Language medium for paper 1 to paper
5 जो भी आपके है, तो आप कौन से लैंग्वेज में देने वाले हो, दैट इज जीएस के पेपर्स और एसए का पेपर कौन से लैंग्वेज में देने वाले हो. सो इफ मोस्ट ऑफ यू वुड प्रेफर इंग्लिश एंड इफ somebody is giving in vernaculars, write that. ऑप्शनल पेपर कौन से लैंग्वेज में देने वाले हो. सो अगेन ऑप्शनल के लिए भी आपको चॉइस है, कौन से पेपर अभी से ही आपको सिलेक्ट करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके. सो लैंग्वेज मीडियम पूछा है अभी तक आपको. ऑप्शनल कौन सा है, यू कैन से ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर. हाँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा है पहले, तो यू जस्ट गो इन फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट. कौन सा है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, से आई वुड गो इन फॉर हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, वॉट एवर इट इज, राइट. तो यू जस्ट गो फॉर दैट एंड नाउ विच यू कैन से ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही आ गया मेरे को. ओके. एंड देन आर यू फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, इफ यू आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट देन यू कैन से, तो इफ आई राइट नो, इफ आई राइट यस, तो मेरे को लैंग्वेज पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है. इफ आई राइट नो, यू कैन से आई डू नॉट, देन ऑटोमेटिकली मुझे लैंग्वेज पेपर भी सिलेक्ट करना पड़ता है, रीजनल लैंग्वेज पेपर, विच आई वुड गो इन फॉर हिंदी. अगेन those who are not very confident, those who are not very confident about, you can say, मराठी और हिंदी, प्लीज सोचो. मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, हिंदी का रिजल्ट मराठी से यू कैन से क्वाइट बेटर है. okay, it is quite better. That is what you can say I would like to tell you, right? Yogeshwari, what have you sent? okay, FAQ. okay, just telegram me, I'll check it and I'll resolve your issue. okay. So have we filled in all the forms, all this have we filled in? okay, जो फोटो आइडेंटिटी नंबर हमारा, okay, so automatically it gives you to verify everything. You just verify this here कि ये सब सही है ना. okay. ये सब आप वेरीफाई कर लो परफेक्टली, और अगर आपको सुधार करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन से you just go ahead. ओके, तो ये आपका पूरा आ गया. ओके, ये आपका पार्ट 1 एप्लीकेशन हो गया. अभी आपको क्या करना है, सो यू कैन से, यू कैन ओनली क्लिक हियर फॉर पार्ट, और इसको प्रिंट कर सकते हो. अभी देखो, ये जब आप करोगे ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा. ओके, तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो जनरेट होता है, रजिस्ट्रेशन आईडी इमीडिएटली जनरेट होता है. रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर पे आता है. ओके, एंड ईमेल पे भी आता है जो भी रजिस्टर्ड है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा, ये आएगा. ये अगर एंटर करोगे दोनों, तो ही आप यू कैन से पार्ट 2 में जा पाओगे. एंड पार्ट 2 इज ऑल अबाउट फिलिंग, यू कैन से, योर फोटो, सिग्नेचर, क्योंकि जो मेन चीजें थी आपने यहाँ पे भर दी है. एंड यू कैन से गिविंग द payment, which you can do online, right? Now if you have got any questions, you can ask. What happens if somebody fills the form incorrectly, like the name is wrong, then would he or she have to fill the form again, or UPSC will give any window to correct it? Usually UPSC does not give the window to correct it, Shilmohan. okay. okay, हर्षवर्धन, आपका जो प्रीलिम का सेंटर है, okay, वो पार्ट 2 में आ जाएगा. प्रीलिम्स का जो सेंटर है, that would come into part 2. okay, Harshvardhan, so don't worry about it. that would come into part 2. okay, so it would not. so शील, आपको फिर दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा. okay, और एक चीज याद रखो, one of my students who has already cleared MPSC, what he did is, he was not sure, anybody of you who is not sure about your optional, तो उसने क्या किया, he was not sure about his optional, so he filled 3 different forms. okay, but now UPSC is very intelligent, it has got softwares, so it recognizes that one person only has filled 3 different forms, so it merges the forms, and जो आपने लास्ट फॉर्म भरा हुआ है, वही फॉर्म वैलिड पकड़ा जाता है, even if you have filled it from different email IDs, phone numbers and different you can say this photo identities. तो लास्ट उसने सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखा था, तो उसका सोशियोलॉजी हुआ. he had selected sociology, anthropology and political science. okay, so please, you can say, if you are going to fill multiple forms, then it can be like a lucky draw for you कि कौन सा फॉर्म सिलेक्ट किया जाएगा. ओके, सो वैसा करना मत. तो फॉर्म भरते वक्त एकदम ध्यान से इसके लिए फॉर्म भरना. यस, एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस?
very straightforward to fill the form. Okay, so I would urge that all of you fill the forms in coming 2 to 3 days, coming you can say weekend, ताकि क्या हो जाएगा आपको you can say जो सेंटर चाहिए वो सेंटर मिलेगा, especially वैष्णवी जो है, those who are going to fill in Delhi. ओके तो इस बार मुझे नहीं लगता है दिल्ली में इतना रश होगा. ओके इस बार मुझे नहीं लगता है दिल्ली में इतना आपको रश होगा. बट यूजुअली जब बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे कोचिंग में दिल्ली में प्रिपेयर करते हैं तो दिल्ली के सेंटर्स जो मेन सेंटर्स होते हैं वो भर जाते हैं एंड देन यू हैव टू गो टू द आउटस्कर्ट्स, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रीलिम्स, राइट? ओके सो yes, if you have got any questions Jyoti about the center and everything, you can always give me a call. Okay, we can discuss it over the phone. So जल्दी अगर भर दोगे तो आपको जो सेंटर चाहिए वो मिलेगा, because each center would have a capacity, and those who are you can say filling in Pune, they should pray that they get HVD CEC because we are also the center, right? हमारा जो HVD देसाई है that is also the center for the preliminary examination. If you get that, it would be like you are playing on the home ground, then no worries. Okay, so because you would be giving the prelims test series also there. Okay, so we end the session here. I don't think that you have got any more doubts. Tomorrow art and culture ka test hoga and ancient and medieval ka test hoga at 10 a.m. Do you want a discussion for that test, or you just want a detailed answer key? Okay, so you can let me know about that. So we'll end it here. If you have got any questions, you can ask me. Okay, chalo, bye bye everybody. Bye bye.